السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں محمد انیس۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ امداد کی بجائے تجارت کی پالیسی، اسلام آباد میں پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم کا انعقاد۔ اقتصادی تعاون کے لیے مشترکہ کاروباری منصوبوں پر غور۔ سعودی قیادت کا معاشی ترقی کے لیے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ۔ سعودی حکومت اور کمپنیز کے لیے پاکستان سرمایہ کاری کے لیے ترجیحی ملک ہے۔ نجی اور سرکاری شعبے میں شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف المبارک کا خطاب۔ معاشی اصلاحات اہم حکومتی ایجنڈا، بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں۔ اقتصادی استحکام کے لیے نجی شعبے کا اشتراک ضروری ہے۔ سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سرمایہ کاری فورم سے خطاب۔ توانائی، ریفائنری، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری حکومتی ترجیح۔ اشرافیہ کا کلچر نہیں چلے گا، آگے بڑھنے کے لیے سب کو مساوی مواقع دینا ہے۔ سرخ فیتے کی جگہ نئے منصوبوں کے لیے خیر مقدمی سرخ قالین کا نظریہ متعارف کرایا ہے۔ سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے قواعد کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ ترقی، خوشحالی اور اعتدال پر مبنی معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں۔ وفاقی وزراء مصدق ملک، عطاء اللہ طارق اور جام کمال کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ مثبت معاشی پالیسیز کے ثمرات، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی۔ 100 انڈیکس میں 862 پوائنٹس کا اضافہ، دوران ٹریڈنگ 73,000 کی حد عبور، مارکیٹ 72,764 پر بند۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اٹلی کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح تبادلوں میں اضافے پر زور۔ تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری اور دوسرے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اعظم کی اٹلی کے سفیر سے گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری کا کوئٹہ کا دورہ، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور صوبائی وزراء کی ملاقات، صوبے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو۔ ایئرپورٹ پر گورنر، وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا۔ یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے، مناسب ہوتا اگر لارجر بینچ ہی کوئی عبوری حکم نامہ جاری کرتا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز کے رجحان کا خاتمہ ضروری ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کی تضحیک نہیں ہونے دیں گے۔ بجلی کی اوور بلنگ کم کرنے کے لیے اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ گندم کی درآمد وفاقی معاملہ ہے، صوبائی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری، صہیونی بمباری میں مزید 52 افراد شہید، 100 سے زیادہ زخمی۔ اسرائیلی فوج نے مشرقی رفح سے فلسطینیوں کا زبردستی انخلا شروع کر دیا، 1 لاکھ افراد کو علاقہ چھوڑنے کا حکم۔ عالمی رہنما اور عالمی امدادی تنظیموں کا رفح پر ممکنہ حملے پر شدید تشویش کا اظہار۔ اسلامی تعاون تنظیم کا غزہ میں جاری قتل عام روکنے کا مطالبہ، بنجول سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ عالمی برادری سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی جائے، امداد پہنچانے کے لیے گزرگاہیں کھولی جائیں، آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔
जम्मू और कश्मीर के बारे में ओआईसी राब्ता ग्रुप का गेम्बिया में इजलास, मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का जायजा। भारत मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक और आज़ादी से महरूम कर रहा है। आलमी बिरादरी भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस दे। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। मकबूजा कश्मीर में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयां, मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए इक़दामात में तेजी, कश्मीरियों के इमलाक जब्त करने का अमल जारी। हुर्रियत क़यादत की इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। मोदी हुकूमत अखंड भारत के एजेंडे पर अमल पैरा, मुस्लिम मुखालिफ मंशूर की बुनियाद पर इलेक्शन में जीत की तैयारी। मोदी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बनाकर इंतहा पसंदी को फरोग दे रही है। अवाम को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट। अपने शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस 3 भारतीय शहरियों की गिरफ्तारी अहम पेशरफ्त है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का सिख फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। दूसरी जंग अज़ीम में कामयाबी पर मॉस्को में यौम फतह की तैयारियां। रूस का फौजी मशकों के दौरान टैक्टिकल जौहरी हथियारों की तनसीब का ऐलान। फ्रांस, बरतानिया और अमरीका की तरफ से खतरात हैं। इक़दाम मगरबी मुल्कों की जानिब से यूक्रेन में फौज भेजने के बयानात का जवाब है। सदारती तर्जुमान। T20 वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रूनुमाई। मेगा इवेंट 1 से 29 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम 6 जून को पहला मैच खेलेगी। और मैड्रिड ओपन टेनिस, रूस के आंद्रे रुबलेव ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ऑग्रे-अलियासिम को 4-6, 7-5 और 7-5 से शिकस्त। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। एक मजहब, एक मंजिल, एक पहचान, तौहीद की लड़ी में पिरोए सऊदिया और पाकिस्तान। गुज़श्ता 76 साला दोस्ती की लाजवाल दास्तान। इसी सफर को आगे बढ़ाने और नई मंजिलों तक ले जाने के लिए इस्लामाबाद में 5 से 7 मई 2024 पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सऊदी अरब के 50 मेंबरान पर मुश्तमिल वफ्द की खुसूसी शिरकत। IT, टेलीकॉम, एनर्जी, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, HR और पेट्रोकेमिकल्स के शुबजात में सऊदी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, जबकि सऊदी कंपनियों का पाकिस्तानी कंपनियों के साथ बराह रास्त इश्तराके कार। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का दिल खोल के साथ दिया। सरमायाकारी और बाहमी शराकतदारी का नया आगाज, नए अज़्म के साथ लाजवाल दोस्ती का एक नया बाब। पाक सऊदिया दोस्ती जिंदाबाद। और अब शामिल करेंगे तफसील। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया गया। शुरका ने मुश्तरका इक़दामात के जरिए तिजारती रवाबित में इजाफे और मौक़े से इस्तिफ़ादा करने पर जोर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शाहिद।
اسلام آباد میں جاری سعودی عرب پاکستان انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم کی وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت متعدد اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری روابط کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ We would take the assets that we have and move them forward into global value chains by downstreaming. We take the assets that Saudi Arabia has and we'll move them downstream and plug them into the global value chains. Both countries would prosper. فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف المبارک نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موزوں سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی سرمایہ کار پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. To the Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے کہا کہ پاکستان دنیا کے لیے ایک بڑا تجارتی ہب ہے۔ ہماری افرادی قوت سعودی عرب اور دیگر ممالک کی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے۔ The military and the political hierarchy and the civil society of Pakistan, they all came together and they decided that the future of Pakistan lies in the economic revival of Pakistan, and for that we have to create a one window operation. وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے پاکستان سعودی سرمایہ کاری فورم سے خطاب میں کہا کہ ہم نجی شعبے کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان سرمایہ کاروں کو سہولیات پہنچانے کے حوالے سے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت SIFC کے تحت سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ We all are committed in giving our best. We are at your service, and this government's commitment is not only changing the reforms, not only bringing those reforms, but it's about changing the mindset also, and it's inshallah with the commitment which we have shown in SIFC, with the Prime Minister's dedication in working day and night just to fulfill this requirement of taking the economic benchmark to another level for Pakistan. فورم سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کا کام پالیسی فریم ورک دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی اصلاحات ہمارا ایجنڈا ہے، بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ Ultimately it's about road to market. If we have a clear view and roadmap in terms of road to market, the first one is export-led growth, and the second one is foreign direct investment, and that's where, ladies and gentlemen, all of you come in. All of you come in because you are going to make it happen inshallah for Pakistan. پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم میں SIFC ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کے پاس بہت بڑی افرادی قوت موجود ہے جو دستیاب وسائل کو بروئے کار لا کر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے کہا کہ حکومت ملک میں توانائی، ریفائنری، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری کے لیے کوشاں ہے۔ حکومتی امور میں سرخ فیتے کی جگہ نئے کاروبار اور منصوبوں کے لیے خیر مقدمی سرخ قالین کا نظریہ متعارف کروا رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں ارسلان اسد سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اور وزیر تجارت جام کمال خان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری کانفرنس کو انتہائی کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے تاجر، صنعت کار اور سرمایہ کار زراعت، کانکنی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں بڑی تعداد میں مشترکہ منصوبوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف پاکستانی معیشت ترقی کرے گی بلکہ پاکستان کے قابل نوجوانوں کو بڑی تعداد میں روزگار میسر آئے گا۔ بھائی چارے کا رشتہ جو ہمارا سعودی عرب سے ہے، جو تاریخی طور پہ تو 1400 سال کا رشتہ ہے، ہم مدد نہیں بھائی چارہ چاہتے ہیں، کلیبریشن چاہتے ہیں، جوائنٹ وینچرز چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں۔ ملک کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نا امیدی کا کلچر ختم ہو، ایک نئی سوسائٹی جس کے اندر امید ہو، جس کے اندر یقین ہو کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ موجودہ حالات میں ملکوں کے درمیان تعلقات اور خارجہ پالیسی کی بنیاد معیشت پر رکھی جاتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور سعودی عرب کے ولی عہد کی ملاقاتوں کے نتیجے میں سعودی کمپنیاں بڑی تعداد میں پاکستان میں کاروبار کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ جو کانفیڈنس اس حکومت کے اوپر سعودی بزنس مین کا آیا ہے، یہ میرے اور آپ کے ایک اچھے سے فنکشن کو کرنے سے نہیں ہوا ہے، یہ وہ ٹرسٹ انہوں نے شاید اس حکومت کی کمٹمنٹ کو دیکھا ہے کہ سامنے آئیں،
اور ساتھ ساتھ یہی کمٹمنٹ ہم نے اپنے بزنس کمیونٹی کو بھی دکھائی ہے کہ آج یہاں پہ تقریباً 100 کمپنیاں پاکستانی 100 کمپنیاں یہاں موجود ہیں، انرجی سیکٹر میں ہیں، فوڈ سیکٹر میں ہیں، کنسٹرکشن سیکٹر میں ہیں، رینیوبل سیکشن کے اندر ہیں، پورٹس اینڈ شپنگ کے سیکشن میں ہیں، اور اسی طرح سے باقی جو ہمارا ایک لے آؤٹ ہے جہاں پہ آئی ٹی سروسز ہے اور جنرل سروسز ہیں وہاں کی طرف سے ہیں۔ وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری کانفرنس میں پہلے مرحلے میں مشترکہ منصوبوں کی نشاندہی کرنا اور دوسرے مرحلے میں ان منصوبوں پر عملی کام شروع ہوگا، جس سے دونوں ملکوں کے مضبوط برادرانہ تعلقات کو مضبوط اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کے مشترکہ ویژن کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا۔ ارسلان صدقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم میں شریک بزنس کمیونٹی نے فورم کو دونوں ملکوں کے درمیان معاشی ترقی اور سماجی خوشحالی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے راہیل انصار۔ سرمایہ کاری کانفرنس میں شریک سعودی تاجروں اور کاروباری افراد نے کہا کہ فورم سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مشکلات کے باوجود اقتصادی استحکام کے لیے حکومت کی جانب سے کی گئی اصلاحات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ پاکستانی تاجروں کا کہنا تھا کہ پاکستان انسانی وسائل سے مالا مال ہے جس سے سعودی عرب استفادہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کے استحکام کے لیے ہمیں دوست ملکوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ We have big requirements for the big projects that in Saudi Arabia. We have giga projects and mega projects. In addition to that, of the healthcare expansion, entertainment expansion. So we are here to come to see how can we deploy all the workforce from Pakistan to Saudi Arabia. دونوں گورنمنٹس کے لیے اور دونوں نیشنز کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے۔ پاکستانی ورک فورس وہاں پہ جائے گی، پاکستانی بزنس مین وہاں پہ جائیں گے، مینوفیکچرنگ میں جائیں گے، کنسٹرکشن سروسز میں، انجینئرنگ سروسز میں جائیں گے، تو ان کی ڈیولپمنٹ کے جو ٹارگٹس ہیں جو انہوں نے اپنا ویژن 2030 سعودی گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے، تو اس کے اچیومنٹ کے لیے پاکستانی ورک فورس، پاکستانی بزنس مین ایک پیوٹل رول پلے کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان لایا جا رہا ہے، اینڈ ان کو صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں بٹ گورنمنٹ ٹو پرائیویٹ اینڈ پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹرز کے ساتھ، یعنی B2B G2B دونوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے، which I think will add a lot of value to the Pakistan economy۔ فورم میں IT، میرین، کانکنی، تیل، گیس اور دواسازی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی سعودی اور پاکستانی کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ مالیات، زراعت، ٹیلی کمیونیکیشن، تعمیرات، لاجسٹک سروسز، ہوا بازی اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں نے بھی فورم میں شرکت کی۔ فورم میں دونوں ملکوں کے نجی شعبے کے درمیان کاروبار کے مواقع اور شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اٹلی کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری اور دوسرے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ اسلام آباد میں اٹلی کی سفیر میرویلا ارملین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے دو طرفہ اعلیٰ سطح تبادلوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اٹلی کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کئی اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر دونوں ملکوں نے یکساں موقف اپنایا ہے۔ محمد شہباز شریف نے اٹلی کی وزیر اعظم کو دورے پاکستان کی دعوت بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ اٹلی میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی آبادی دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اطالوی سفیر نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور صوبائی وزراء نے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ اس دورے کے دوران صدر مملکت کو بلوچستان میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ صدر مملکت سے ملاقات کرنے والوں میں میر صادق عمرانی، علی مدد جتک، میر ظہور بلیدی، سردار عبد الرحمن کھیتران، میر سلیم کھوسا، فیصل جمالی، غزالہ گولا اور رکن صوبائی اسمبلی اور سینئر رہنما پیپلز پارٹی نواب ثناء اللہ زہری شامل تھے۔ اس سے قبل صدر آصف علی زرداری کوئٹہ پہنچے تو ایئرپورٹ پر گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ ساتھ رہیے گا۔ یہ کون سی بریک ہے؟ ایک مذہب، ایک منزل، ایک پہچان، توحید کی لڑی میں پروئے سعودیہ اور پاکستان، گزشتہ 76 سالہ دوستی کی لازوال داستان۔ اسی سفر کو آگے بڑھانے اور نئی منزلوں تک لے جانے کے لیے اسلام آباد میں 5 تا 7 مئی 2024 پاک سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد۔ سعودی عرب کے 50 ممبران پر مشتمل وفد کی خصوصی شرکت، IT، ٹیلی کام،
एनर्जी, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, HR और पेट्रोकेमिकल्स के शुबजात में सऊदी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, जबकि सऊदी कंपनियों का पाकिस्तानी कंपनियों के साथ बराह रास्त इश्तराक कार। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का दिल खोल के साथ दिया। सरमायाकारी और बाहमी शराकतदारी का नया आगाज, नए अज़्म के साथ लाजवाल दोस्ती का एक नया बाब। पाक सऊदिया दोस्ती जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर दी और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अदालत ने तनासुब से ज्यादा मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को वोट देने से रोकते हुए कहा कि फैसलों की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के लिए शराइत रखी हैं। पार्लिमानी जमात बनने के लिए सियासी जमात को किसी एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया और बाद में उसके आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। आइंदा समाअत 3 जून को होगी। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि ये मामला आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह का है। मुनासिब होता कि इस हवाले से कोई लार्जर बेंच हुक्म जारी करता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत मामले की समाअत 5 रुकनी बेंच को करनी चाहिए थी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार पर हुक्म इम्तिनाअ से एतराज़ बरता जाना चाहिए था। आइन का आर्टिकल 67 वाज़ेह तौर पर कहता है कि पार्लिमानी रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है और इसकी कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तरक्की और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि दुनिया की तरक्की और खुशहाली अमन से वाबस्ता है। इस मकसद के लिए नफरत और मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। तफसील जानते हैं वर्दा सलीम से। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में होने वाली अमन और तरक्की कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए पुरअमन माहौल, सियासी इस्तेकाम, पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात के एजेंडे पर तेजी से काम करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना हम सब का फर्ज है, जिसके लिए नौजवानों में नफरत के बीज बोने को रोकना होगा। इंसान के दिमाग की ऑब्जेक्टिविटी जब कॉम्प्रोमाइज होती है, जब वो उसके अंदर तासुब और नफरत के वायरस को बीज देता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम अपने ज़हनों को नफरत और तासुब के बीज से बचाने के लिए अपना एंटी वायरस सिस्टम मजबूत रखें। हम सब अपने मुल्क को उस इंतशार और हिजान से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वफाकी वजीर ने कहा कि दुनिया खुसूसन जनूबी एशिया को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली फेक न्यूज से सबसे बड़ा खतरा है। हमें नफरत के रवैयों को खत्म करके मेरा पाकिस्तान की तहरीक शुरू करना होगी। मेरा मकसद ये है कि हम मुस्तकबिल के नौजवानों को ऐसे नफरत पे मबनी इंतहा पसंदी के रवैयों से बचा सके। कॉन्फ्रेंस से मुजीबुर रहमान शामी, सरमद खोसट, खुर्शीद नदीम, क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, इरम जावेद और बिशप नदीम कामरान समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और मुल्क को तरक्की खुशहाली के लिए अमन के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के रुझान का खात्मा ज़रूरी है। आज़ादी इजहार राय की आड़ में किसी की तज़हीक नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बिजली की ओवर बिलिंग कम करने के लिए इक़दाम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। लाहौर में FIA के दफ्तर के दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम पर बिला वजह बोझ नहीं डाला जा सकता। लेस्को को इजाफी बिल हर सूरत सार्फिन को वापस करने की हिदायत की गई है। उन्होंने कहा कि लेस्को ने सार्फिन को बिजली के 31 करोड़ यूनिट्स वापस करके रिलीफ फराहम किया है। अप्रैल के महीने में लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं हुई है और बाकी डिस्कोज में भी ओवर बिलिंग बहुत हद तक रुकी है। जो पब्लिक को रिलीफ मिला है वो अभी 31 करोड़ यूनिट जो हैं वो
कंज्यूमर्स को वापस किए गए जो ओवर बिलिंग में आए थे। किसी का बिल अगर 5,000 था और उसका 10,000 आता तो उसके लिए बहुत मैटर करती थी ये चीज़, तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है ये जो मिल गया है लोगों को। वफाकी वजीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों से सरकारी कोटे के तहत गंदम खरीदती है। बैनुल अक़वामी मंडियों से गंदम खरीदना पंजाब हुकूमत की पॉलिसी नहीं। पंजाब एक अपना कोटा मुकर्रर करता है कि हमने इतना ख़रीदना है, वो हर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट करती है। उसके बाद पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा कि सियालकोट एयरपोर्ट पर रवानगी काउंटर्स बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं, जबकि लाहौर एयरपोर्ट की तोसी भी जल्द शुरू हो जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात के हवाले से बेहतर हिकमत अमली अपनाई जा रही है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सियालकोट एयरपोर्ट का दौरा किया, जहां उन्हें मुसाफिरों को सहूलियात की फ्राहमी के इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा ने बैरून मुल्क जाने वालों को दी गई सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफा करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सियालकोट एयरपोर्ट के रनवे की तोसी काम के दौरान ही इमिग्रेशन काउंटर्स को बढ़ाया जाए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइसर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इस्लाहाती एजेंडे और आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली फ़नी इमदाद के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए आलमी बैंक की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आलमी बैंक की जानिब से फराहम किए जाने वाले तकनीकी ताउन से गवर्नेंस मॉडल्स की तश्कील में मदद मिल रही है। मार्टिन राइसर ने कहा कम लागत की तवानाई के लिए इस्लाहात के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से पंजाब भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने उन्हें हिदायत की कि करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएं। उन्होंने कहा कि अफसरान अपने दरवाजे आवाम के लिए हमेशा खुले रखें। वज़ीर आला ने कहा कि तालीम, सेहत, कीमतों पर कंट्रोल और मसनूई महंगाई की रोकथाम पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि रोटी की 16 रुपये और नान 20 रुपये की कीमत पर फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। पंजाब पुलिस ने इंसदाद मनशियात मुहिम में तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। लाहौर में मनशियात सप्लाई करने वाले सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार कर लिया गया और करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद कर ली गई। जॉर्डन लाहौर में मनशियात सप्लाई करने वाले बाअसर गैंग समझा जाता है, जो मैक्सिको और दीगर ममालिक से मनशियात से भरी इंपोर्टेड चॉकलेट कोरियर सर्विसेज के जरिए बेच रहे थे। सेंट्रल एशिया, कनाडा, मैक्सिको और दीगर ममालिक से चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह की शक्ल में मनशियात भेजी जाती थी, जिसे मुल्जिमान फेक ID के जरिए पाकिस्तान में मौजूद सप्लायर से रब्ता करके मुहैया करते थे। पंजाब पुलिस ने खुसूसी ऑपरेशन के दौरान DHA फेज 6 से जॉर्डन गैंग के 5 रुकन और 9 गनमैन गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस टीम को CM ऑफिस बुलवाकर शाबाश दी और मेहनत जारी रखने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से स्पीकर सिंध असेंबली अवैस शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सिंध असेंबली के मुख्तलिफ उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP सिंध के रहनुमा मंजूर वसान ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर खैरपुर के अवाम और उनके मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP सिंध के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर हैदराबाद के अवाम और उनके मसाइल के हवाले से बातचीत हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP सिंध के रहनुमा तैमूर तालपुर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर उमरकोट के अवाम और उनके मसाइल के हल पर गुफ्तगू हुई। शाह मीर तालपुर भी उनके हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से यूथ अफेयर्स से मुतालिक कोऑर्डिनेटर मीर सोहराब खान मरी और मीडिया सेल बिलावल हाउस के रुकन वकास शौकत ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर नौजवानों के सियासी अमल में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत के हवाले से गुफ्तगू की गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 862 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 72,764 पर बंद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स ने 73,000 की हद अबूर कर ली। ताहम इख्तिताम पर मार्केट 72,764 पर बंद हुई। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इक़्तिसादी इस्लाहात के साथ साथ सऊदी सरमायाकार वफ़द की पाकिस्तान आमद से मुल्क में सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे का इम्कान है।
जिसकी वजह से मार्केट में तेजी देखने में आ रही है। 73,000 इंडेक्स भी मार्केट ने क्रॉस कर लिया। सऊदी अरेबिया की जानिब से जो वफ्द आया उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें माइनिंग, IT सेक्टर, इसके अलावा एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत होगी। इस्लामाबाद में बड़ी ज़बरदस्त एक कॉन्फ्रेंस चल रही है और उस हवाले से जो आउटकम आता जा रहा है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उसको वेलकम कर रही है और मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट कर रही है। स्टॉक मार्केट में 57 करोड़ 83 लाख 88 हजार शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 24 अरब 51 करोड़ 83 लाख रुपए से जायद थी। मार्केट में 387 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 257 कंपनियों के शेयर्स में तेजी, 107 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 23 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। एक मजहब, एक मंजिल, एक पहचान, तौहीद की लड़ी में पिरोए सऊदिया और पाकिस्तान, गुज़श्ता 76 साला दोस्ती की लाजवाल दास्तान। इसी सफर को आगे बढ़ाने और नई मंजिलों तक ले जाने के लिए इस्लामाबाद में 5 ta 7 मई 2024 पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सऊदी अरब के 50 मेंबरान पर मुश्तमिल वफ्द की खुसूसी शिरकत। IT, टेलीकॉम, एनर्जी, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, HR और पेट्रोकेमिकल्स के शोबाजात में सऊदी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, जबकि सऊदी कंपनियों का पाकिस्तानी कंपनियों के साथ बराह रास्त इश्तराक कार। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का दिल खोल के साथ दिया। सरमायाकारी और बाहमी शराकतदारी का नया आगाज, नए अज़्म के साथ लाजवाल दोस्ती का एक नया बाब। पाक सऊदिया दोस्ती जिंदाबाद। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। इसराइली फौज ने रफा पर शदीद बमबारी करते हुए निहत्ते फ़लस्तीनियों को मशरक़ी इलाका खाली करने का हुक्म दिया है। सिहोनी फौज ने मशरक़ी रफा से आबादी का ज़बरदस्ती इनखला शुरू करते हुए जल्द फौजी कार्रवाई शुरू करने का इंदिया दिया है। पोस्टर्स, मोबाइल पैगामात और मीडिया के जरिए शहरियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग्स दी जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ रॉकेट हमले में 3 फौजियों की हलाकत के बाद इसराइली फौज की कार्रवाइयों में मजीद इजाफा हो गया है। इसराइली फौज ने रफा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद गोलाबारी की है, जिसमें 52 अफराद शहीद जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने कहा है कि मशरिकी रफा से तकरीबन 1 लाख अफराद के इनखला करने का हदफ है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक रफा में तकरीबन 12 लाख बेघर फ़लस्तीनी मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद काहिरा में होने वाले जंगबंदी मुज़ाकरात से वाबस्ता उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। सिहोनी हुकूमत ने अल जज़ीरा की नशरियात बंद कर दी हैं। आलमी रहनुमा और आलमी इमदादी तंजीमों ने रफा पर मुमकिना हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो बैनुल अक़वामी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए इसराइल पर दबाव डाले और मशरिकी बैतुल मक़दस समेत फ़लस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी कब्जा, नौ आबादियाती पॉलिसीज़ और नस्ल परस्ताना इक़दामात ख़त्म करवाए। गैम्बिया के दारुल-हुकूमत बंजुल में इस्लामी ताउन तंजीम के 15वें सरबराह इजलास के बाद जारी इलामे में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा और गजा तक हंगामी इमदाद पहुँचाने और गुज़रगाहें खोलने की भी अपील की गई है। इलामी में कहा गया है कि खुराक और ईंधन की किल्लत और पानी की अदम फराहमी जैसे इक़दामात नस्ल कुशी के ज़ुम्रे में आते हैं। इलामी में फ़लस्तीनियों की अपनी सरज़मीन से ज़बरदस्ती बेदखली को मुस्तरद करते हुए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की भरपूर हिमायत का इरादा किया गया है, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल कुद्स होगा। इलामी में मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और तनाज़े के कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक फौरी हल की भी तौसीह की गई। इलामी में जोर दिया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर करें। OIC सरबराह इजलास में पुरअमन, मुस्तहकम, खुशहाल और जामे अफ़गानिस्तान के लिए हिमायत के अज़्म का भी अयादा किया गया। गैम्बिया में होने वाले जम्मू कश्मीर के बारे में OIC राब्ता ग्रुप के इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इजलास में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल और मकबूजा इलाके में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल का जायज़ा लिया गया।
वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि भारत मुनज़्ज़म तरीके से कश्मीरियों को बुनियादी हकूक़ और आज़ादी से महरूम कर रहा है। भारतीय हुकाम ने इख्तिलाफ राय को कुचलने के लिए खौफ व हिरास का माहौल पैदा कर रखा है। इसहाक डार ने कहा कि आलमी बिरादरी कश्मीर के बारे में भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस ले। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की नाकाबिल तनसीख हक खुदरादियत के लिए जायज़ जदोजहद की हिमायत जारी रखेगा। उधर गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता 3 दिन से बड़े पैमाने पर जारी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ शोपियां, गादराबल, बांडीपुरा, इस्लामाबाद, पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, डोडा और उधमपुर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। भारतीय फौज कार्रवाइयों के दौरान हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल कर रही है। नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती एजेंसी ने जिला पुंछ में 2 और कश्मीरियों की जायदादें जब्त करने के नोटिस जारी किए हैं। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत से ही मकबूजा इलाके और जनूबी एशिया में अमन कायम हो सकता है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद भी अस्करियत पसंदी जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों ममालिक बातचीत का अमल शुरू नहीं करते और मसला कश्मीर का हल तलाश नहीं करते, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। भारत में बीजेपी और मोदी के मुस्लिम मुखालिफ बयानिए पर इंतखाबात में जीत के हवाले से अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार मुसलमानों को निशाना बनाने की मुहिम के तहत इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रही है और भारतीय अवाम को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही है। अल जज़ीरा के मुताबिक मोदी की मुस्लिम मुखालिफ सोच भारत में अक़लियतों के खिलाफ जारी तशद्दुद को हवा दे रही है। तकरीबन 20,000 शहरियों ने मोदी सरकार की तरफ से नफरत अंगेज तकरीर के इल्ज़ामात के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खत लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय मुसन्निफ नेल्सन मुखोपाध्याय ने अल जज़ीरा से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी और मोदी ने भारतीय जमहूरियत को बुरी तरह तबाह किया है। कांग्रेस के रुकन असम्बली प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे के वकार को बदनाम कर दिया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान तहरीक के कनाडा में आजहानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस 3 भारतीय नयाद शहरियों की गिरफ्तारी को काबिल तारीफ करार देते हुए कहा है कि हुकूमत अपने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करेगी। सिख फाउंडेशन ऑफ कनाडा के 100 साला तकरीब से खिताब में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन पुलिस की तहकीकात गिरफ्तार किया गया 3 भारतीय शहरियों तक महदूद नहीं है। कैनेडियन पुलिस ने एक बयान में कहा था कि वो उन 3 अफराद के भारतीय हुकूमत के साथ ताल्लुकात की भी तहकीकात कर रही है। 45 साला हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के इलाके सरे में एक सिख गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। उधर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गुंडों ने अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के दफातर पर हमला कर दिया। कांग्रेस रहनुमा प्रिया गांधी के अमेठी के दौरे से पहले रात गए बीजेपी के गुंडों ने दफ्तर पर हमला किया और पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की। कांग्रेस के तर्जुमान का कहना है कि बीजेपी शिकस्त देकर गुंडागर्दी पर उतर आई है और अमेठी के लोकसभा के लिए बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। असन सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरने से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तस्लीम करने और इसे पब्लिक करने के हवाले से 15 दिन में मौक़िफ़ तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क किया कि इंक्वायरी कमीशन ने अदालती फैसले के कई अहम निकात नजरअंदाज किए। आइंदा समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 15 रोज में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अथॉरिटी बनाने का हुक्म दिया है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक्ट 2017 का है। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद अथॉरिटी का कयाम अमल में नहीं लाया गया। आइंदा समाअत 3 जून को होगी। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने स्कर्दू समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने गिलगित स्कर्दू शाहरा पर लैंड स्लाइडिंग का मुआयना भी किया। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के हुकाम ने वफाकी वज़ीर को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा कि स्कर्दू से मुंसलिक शाहराहों पर महफूज सफ़र को यकीनी बनाया जाएगा।